हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ईयर, द लास्ट पोर्शन, दैट इज organ of balancing and the equilibrium, especially for the angular or the dynamic equilibrium. Okay, maintaining the body balance or the equilibrium at which condition? When there is a tremendous rapid movement, sudden movement, whenever there is a sudden movement of the body, किस तरीके से इस सडन मूवमेंट जब बॉडी का होगा तो बॉडी बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाएगा। इसके पहले हमने पढ़ा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम अभी पढ़ने जा रहे दैट इज द डायनामिक, दैट इज द रिलेटेड विद द डायनामिक मूवमेंट। ओके, इक्विलिब्रियम विच इज रिलेटेड विद द डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ हियर दैट मीन्स इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोजिशन, बॉडी पोजीशन को मेंटेन करना है इन रिस्पॉन्स टू दी सडन मूवमेंट। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोजीशन इन रिस्पॉन्स टू दी सडन मूवमेंट, क्विक मूवमेंट जब भी होगा उस समय बॉडी बैलेंस पोस्चर किस तरीके से मेंटेन होगा। नो हियर हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है हमने स्टडी किया था, एंड इट इज नथिंग बट द एक्चुअल मैकुला which are located in the utriculus and the sacculus. The macula are the sensory spot, okay, and the sensory spot which are located in the utriculus and the sacculus, these are the macula and responsible to maintain the body balance. Okay, that is especially when there is a movement of the body at one place, static equilibrium. और हमने इस मैकुला का स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था। That macula having the specialized sensory cells, supported by means of a supporting cells, then the ultimately wall of the macula, the central space which is filled up by means of a endolymph, and the hairy projections of these sensory hairs, sensory hair cells, उनके hairy projection, उनको हमने क्या बोला था, stereocilia, and these are embedded in the gelatinous covering, and that gelatinous sheath which hold the entire gelatinous material, that is nothing but the otolith membrane, and on the top of that otolith membrane the presence of a scattered calcium carbonate crystals. Okay, तो उस समय हमने स्टडी किया था कि जब भी हम अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ओके, उस समय जो बॉडी बैलेंस होगा, उस समय जो मूवमेंट होगा, हेड का ट्विस्टिंग होगा, झुकाव होगा, उस समय ये कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल वो पुल करेंगे इन रिलेशन टू द ग्रेविटी, एंड बिकॉज ऑफ विच बेंडिंग ऑफ द स्टीरियोसिलिया ऑकर्स, एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द इंपल्स विच आर कैरिड टुवर्ड्स द cerebellum, and then that cerebellum control or maintain the body posture by showing the proportionate muscle contraction of the various skeletal muscles. Okay, तो हम चलते हैं यहां पर भी about the angular or the dynamic equilibrium. That means sudden movement, for example running movement, हम रनिंग कर रहे हैं फास्ट, रनिंग करते करते इधर उधर ट्विस्ट कर रहे हैं खुद की बॉडी को, डांस कर रहे हैं, ओके, tremendous there is a head movement, body movement, rapid, angular in different directions. Okay, at that time such kind of the angular or the dynamic equilibrium, it is maintained by means of a three specialized tubules. Okay, and these are called as the semicircular canals. अभी यहां पर जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो कौन थे, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस। अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेमी सर्कुलर कैनल्स विच आर 3 in number. That means first, then second, and then the third, like this. Now see the arrangement of these semicircular canals. Okay, हम अगर इन अरेंजमेंट देखते हैं like this, exactly x axis,
y axis and then the z axis, x axis, y axis and the z axis. मीन्स ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनल एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, राइट एंगल टू ईच अदर. ओके, नाउ सी हियर, one is nothing but the first anterior or the superior, second which is called as the posterior one, and third is nothing but the lateral one. Okay, पहला है first anterior or the superior, second is the posterior one, and third is the lateral one. And when you observe these semicircular canals, they shows the swollen structure swelling at its base, and that swollen structure is called as the ampulla, and these are ultimately no doubt filled up by means of the endolymph, that fluid. अब ये सभी एम्पुलाज बेस पर है, जहां पर स्पेशली दी एंटीरियर और दी सुपीरियर एंड दी पोस्टीरियर दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, while the third one, that is the lateral one, never get connected, and all these three semicircular canals also get connected internally with the utriculus and sacculus. ये utriculus और sacculus तीनों से भी connected है. Okay, and now here to control that dynamic equilibrium, the specialized sensory receptors are located in these basal ampullae. उन बेसल एम्पुलीज के अंदर है. ओके, तो सेंसरी स्पॉट्स और द ग्रुप ऑफ दैट सेंसरी सेल्स और सेंसरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड वेयर इन दिस एम्पुलीज एट द बेस ऑफ द ईच सेमीसर्कुलर कैनल. ओके, एंड नाउ दीज आर कॉल्ड एज द क्रिस्टा. क्रिस्टा, यहां पर हमने क्या बोला था, यूट्रिकुलस और सैकुलस के लिए सेंसरी रिसेप्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ मैकुला. And now here the sensory receptors located in these ampullae, these are called as the crista. When you observe the structure of the crista, again the same, the wall of the semicircular canal, that is nothing but the ampulla portion. As this crista located in the ampulla, also called as the crista ampullaris. Crista ampullaris. And now here in this crista, okay, which structures are located? Now here again the wall of the crista, where there are again at the base specialized sensory hair cells. These are the specialized receptors having the tuft of the cilia, hairy projections. Okay, and these sensory hairs, they are quite long and stiff, straight written, stiff hair, long hair. And these are completely embedded in the gelatinous mass. जैसे वहां पर भी था स्टीरियोसिलिया, दे आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन द gelatinous mass, और उस gelatinous mass पर जो कवरिंग है उसको हमने बोला था ओटोलिथ मेम्ब्रेन. लेकिन यहां पर वो gelatinous mass का जो कवरिंग है उसको हम बोल रहे हैं क्यूपुला. इट इज नाउ कॉल्ड एज क्यूपुला. ओके, हियर इज अ मैकुला, इज अ क्रिस्टा. वहां पर है gelatinous mass का कवरिंग, that is otolith membrane. यहां पर gelatinous mass का कवरिंग कौन है, क्यूपुला. Okay, and now here again all these sensory hair cells, receptor cells, they are supplied by means of nerve fibers, and these nerve fibers again get connected, forming the way through the which branch, that is vestibular branch of the auditory nerve, that is the 8th cranial nerve, which finally ends into the cerebellum region. Okay, now here what happened? Now see the x-axis. x-axis, एक कान से लेकर दूसरे कान, ये ट्रांसवर्स वन. ओके, x-axis. ये कब इस x-axis में अगर मूवमेंट होता है तो किस टाइप का मूवमेंट होगा? दैट इज नथिंग बट द शेकिंग और द साइड टू साइड मूवमेंट. शेकिंग, हेड को शेक कर रहे हैं, हम लुढ़क नहीं जाते, इवन द रैपिड शेकिंग. ओके, हमारा बॉडी बैलेंस नहीं चला जाता. ओके, नाउ हियर व्हेन देयर इज अ रैपिड शेकिंग like this, which can be called as the no movement. Now it is controlled by means of that lateral semicircular canal. उस समय क्या होगा, उसके अंदर का जब हम हेड को शेक कर रहे हैं,
that endolymph located inside that canal, it also shows a shaking. It also get disturbed. And disturbing the एंडोलिम्फ अगर डिस्टर्ब हो गया, अगर वो शेक हो गया तो क्यूपुला भी शेक होगा. ओके, क्यूपुला अगर शेक होता है तो अल्टीमेटली हेयर्स भी शिफ्ट हो, वो भी डिस्टर्ब हो गए. और जैसे उनमें डिस्टर्बेंसेस होगा, अल्टीमेटली क्रिएटिंग द इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल, एंड देन दैट अल्टीमेटली इंपल्स कैरिड बाय द नर्व फाइबर टुवर्ड्स द सेरेबेलम. ये हुआ कौन सा मूवमेंट? एक्स एक्सिस. इट इज बिकॉज ऑफ द अल्टीमेटली लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल. दूसरा हम चलते हैं वाई एक्सिस पर. वाई एक्सिस, ओके, एंड इट इज नाउ द अप एंड डाउन मूवमेंट, अप डाउन, लाइक दिस, अप एंड डाउन मूवमेंट. ओके, दैट मीन्स हियर यस मूवमेंट कैन बी कॉल्ड एज ई. तो लैटरल कैनल के द्वारा कौन सा होगा? शेकिंग, दैट इज नो मूवमेंट. एंटीरियर और द सुपीरियर कैनल के द्वारा कौन सा मूवमेंट कंट्रोल होगा? दैट इज द अप एंड डाउन, दैट मीन्स यस मूवमेंट, यस. ओके, नो हियर व्हाइल द जेड एक्सिस, जहां पर हम अपने हेड को रेस्ट करते हैं दोनों कंधों पे, लाइक दिस. गॉट इट? नाउ हियर राइट फ्रॉम द nose tip up to the back of the head. Now here that is the tilting movement, tilt कर रहे हैं, okay, along that Z line. Now it is controlled by mesope, such posterior or nothing but the posterior semicircular canal. तो जब भी एंडोलिम्फ मूव करेगा, ये किसको मूव करा देता है, किसको शिफ्ट करा देता है? एंटर क्यूपुला को शिफ्ट करता है. और जैसे क्यूपुला अगर शिफ्ट हो गया, ultimately disturbing the sensory hairs, and that disturbances, shifting of the sensory hairs, creating the generation of the impulse, and then that impulse carried by mesope nerve fibers and reaches up to the cerebellum. और cerebellum उसको नोटिस करेगा और बॉडी पोस्चर को रेगुलेट करने के लिए फिर मैसेज भेजेगा स्केलेटल मसल की तरफ, which shows a proportionate muscle contraction and the body balance is maintained. अभी कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. मेरी गो राउंड गोल गोल घूमते हम, या अगर हम भी खुद ही गोल गोल घूमेंगे बहुत फास्ट रैपिडली, लेकिन अगर थोड़ी देर घूमने के बाद, या उस मेरी गो राउंड पर झूलने के बाद, ओके, गोल गोल झूलने के बाद जैसे हम उतरते हैं तो हम अपना खुद का बैलेंस रेगुलेट नहीं कर पाते, ओके, गिर जाते हैं. हम पकड़ लेते किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस के लिए. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम गोल गोल घूम रहे हैं तो अल्टीमेटली इन सेमी सर्कुलर कैनल्स में फ्लूइड भी गोल गोल घूम रहा. ओके, फ्लूइड भी गोल गोल घूम रहा. अगर फ्लूइड अगर गोल गोल घूमता है तो रेगुलरली वो किसको डिस्टर्ब कर रहा? दैट इज दी क्यूपुला को डिस्टर्ब कर रहा और रेगुलरली इंपल्स जनरेट कर रहा. लेकिन जैसे हम रुक जाते हैं, गोल गोल घूमना बंद कर देते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, तो हम अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ी देर हमको समय लेना पड़ता है. कब तक समय लेना पड़ता है? जब तक एंडोलिम्फ स्टेबल नहीं हो जाता है. जैसे ही एंडोलिम्फ स्टेबल होगा वैसे हम बोलेंगे नहीं, नाउ आई एम फाइन. ओके, गॉट इट? तो इस तरीके से अभी कुछ बच्चे, छोटे बच्चों को हम देखते हैं, कुछ बच्चों को अगर हम उठा लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं तो रोना चालू कर देते हैं. एक जगह ही वो पर्टिकुलरली बैठे रहेंगे, वो खड़े भी नहीं होंगे, ठीक से चलेंगे भी नहीं. लेकिन कुछ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, वो अपना सर इधर उधर घुमाते हैं, बिल्कुल इधर से उधर दौड़ते हैं. यानी कुछ बच्चों को स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद होती है और कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा मूवमेंट पसंद होती है. तो जिन बच्चों में स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद होती है, इसका मतलब क्या है? ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स है ये हाइपर एक्टिव है. ओके, और जिनमें बहुत ज्यादा रैपिड मूवमेंट होता है बच्चों में, इधर उधर घूमते रहते हैं, गिराते रहते हैं सर इधर उधर, उनमें हाइपो सेंसिटिविटी, लेस सेंसिटिविटी है. यानी अगर जो बच्चा बैठा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी वो इधर अपने खुद को डिस्टर्ब करेगा तो इमीडिएटली सेंसेशन जाता है. ओके, दैट इज हाइपर एक्टिविटी. तो दोनों का ट्रीटमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट ईयर को स्टडी किया
पहले तुमने मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया, बाद में हमने फिजियोलॉजी स्टडी किया रिगार्डिंग दी हियरिंग एपेरेटस नथिंग बट दी कॉक्लिया, उसके बाद बैलेंसिंग एपेरेटस नथिंग बट दी वेस्टिबुलर एपेरेटस along with the semicircular canal. तो वेस्टिबुलर एपेरेटस it is for the static equilibrium and then the semicircular canal for the dynamic equilibrium. स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा स्ट्रक्चर है? मैकुला, दैट इज सेंसरी स्पॉट और द रिसेप्टर लोकेटेड इन द यूट्रिकुलस एंड द साइकुलस. व्हाइल द डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज द क्रिस्टा. ओके, एंड दैट क्रिस्टा इज also called as crista ampullaris because they are located at the base, ampulla like base, swollen base of the east semicircular canal. Okay, and now the fluid located, that's the endolymph located in the semicircular canals, also that endolymph present in the utriculus and sacculus. Actually when it get disturb the hair cells in both the macula and the crista and responsible to generate the impulse. Okay, and then these impulses are carried by means of a vestibular branch towards the cerebellum, where by means of a cerebellum, okay, this message get received, understood, and then generate the motor impulse to show the proportionate muscle contraction to regulate or to maintain the body balance. Okay, it is all about the human ear. Okay, thank you.